एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. How are you all? I hope you all are good. So before moving towards my today's lecture, I will definitely give you the message about the COVID-19 or coronavirus, because we have been conveying this message again and again, because your security, your safety and your health is at priority for ourselves. So the message is that you need to stay home in order to stay safe, and there are a couple of things that you need to take care of and you need to take them in your mind all the time. First thing is that you need to wash your hands on regular basis. It could be through any soap, it could be through water. You can sanitize your hands as well. You need to use face mask. That is inevitably required. Whenever you go out, whenever you go to the crowded places, you need to wear a face mask. That is a must thing. You need to keep this thing in your mind always. And third, that there should be no shake hands, there should be no hugging at all, because in this way you can prevent the transmission of the virus, right? So you need to stay home, you need to stay safe. Now coming back towards our today's lecture. So today is the lecture number 17th of our sequence, and today we are going to discuss review 1. Review 1 consists upon unit number 1 to unit number 4. In 9th class English book, we have 3 reviews because it has 12 chapters, 12 units. So first review starts from unit number 1, ends at unit number 4. Second starts from 5th and ends at 8th. And third starts from 9th and ends at 12th. So today we'll discuss review number 1 as well as the summary of daffodils. So without wasting any further time, I would definitely start straight away. Review 1, which starts from unit number 1 to unit number 4, it is on page number 53. That page has already been mentioned here on the whiteboard. So open your books at page number 53 so that we can start our review 1. Review 1 starts from the comprehension, which is based upon the question answer, the short question answers, which are very frequently asked in the papers. और उन्हीं को कंपाइल करके ये रिव्यू 1 में जो है क्वेश्चन आंसर्स को डाला गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आस्क्स व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आर यूनिट नंबर 4, जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला यूनिट है, ये उस यूनिट से बिलोंग करता है। तो सवाल ये पूछता है कि अबू जहल जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उसने पूछा तो क्या हुआ। जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पूछा तो क्या हुआ। आंसर सेज ही वॉज एनॉयड। एनॉयड क्या होता है? एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना या बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। ही वॉज एनॉयड गुस्से में होना या बरहम होना। सो ही वॉज एनॉयड, बहुत गुस्से में था, बाय हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिप्लाई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिप्लाई की वजह से, जो उन्होंने जवाब दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड स्लैप्ड हर फेस, स्लैप्ड हमने पढ़ा था तमाचा मारना, थप्पड़ रिसीव करना, और उसने उनके चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ रिसीव किया दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ, कि उनके कान की बाली नीचे गिर गई। तो हम इसको दोबारा से बाब मुहावरा कर लेते हैं। वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जवाब पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने उनके चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी कान की बाली गिर गई। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन सा वाक़या इस कहानी में आपको हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत के बारे में मालूमात देता है, जेनरोसिटी। तो आंसर है जी, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वॉज जेनरस टू सच एन एक्सटेंट
एन एक्सटेंट या एक्सटेंट का मतलब होता है हद, वो इस हद तक सखी थी हज़रत उस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दैट व्हेन शी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना, इनहेरिटेड, विरासत में मिलना मीन्स जैसे वालिद की तरफ से छोड़ी हुई जो जायदाद है उसमें जो हिस्सा मिलता है उसको कहते हैं विरासत। तो व्हेन शी इनहेरिटेड अ गार्डन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद उन्हें विरासत में एक बाग मिला, शी सोल्ड इट, उन्होंने उसको बेच दिया, एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और अपनी तमाम दौलत गरीबों और मोहताजों या ज़रूरतमंदों को बांट दी। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हद तक सखी थीं, सखावत करने वाली थीं या गनी थीं कि वो बाग जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी बहन की वफ़ात के बाद उन्हें विरासत में मिला, उन्होंने वो बेच डाला और उसकी रकम, उससे पैसे जो थे वो तमाम गरीब और मिस्किनों में या ज़रूरतमंदों में बांट दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है। द मैसेज दैट वी गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा is that we should have staunch and resolute faith. Staunch, इंतहाई पुख्ता, इंतहाई पुख्ता, बहुत ज़्यादा पक्का अज़्म। ये स्टूडेंट साथ साथ आप नोट करते जाया करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो इस हवाले से। तो हज़रत उस्मा रज़ी अल्लाह तआला इज़ दैट वी शुड हैव स्टॉन्च एंड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, हमें उनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें इंतहाई पुख्ता और पक्का ईमान, बिलीव रखना चाहिए हज़रत अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। वी ऑल्सो लर्न दैट वी शुड फॉलो द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडेस्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी प्रैक्टिस्ड बाय हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तमाम ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में बहादुरी, शुजात, ईमानदारी, अखलाक़ी जो उनकी हालत थी, जिस तरह वो इन तमाम वैल्यूज़ को, इक़दार को कदर करती रहीं, इनको फॉलो करती रहीं, हमें भी उनकी ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि हमने भी इन तमाम इक़दार का उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह उन्होंने रखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी। रेवलेशन हमने पढ़ी थी और वो आपने उसका टेक्स्ट भी आपको याद होगा, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, और ये यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हम इसको उसी तरह पढ़ते हैं। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. तो ये वही थी, इसका अब हम तर्जुमा देखते हैं। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से, जिसको हम अक्सर आप कुरान पाक में देखते हैं कि ये इकरा के नाम से होता है और इंग्लिश में इसका मीनिंग रीड है, और अगर हम इसको ब्रिज करें उर्दू से तो इसका मतलब है पढ़ना। तो पढ़ अपने रब के नाम से। थाई लॉर्ड, थाई मैंने आपको बताया था इट्स एन ऑब्सलीट इंग्लिश, इट्स नॉट यूज नाउ, और अगर अब हम इसको आज की इंग्लिश में देखें तो ये योर है, और अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो ये आपका या तुम्हारा है। थाई लॉर्ड, अपने आका, अपने मालिक के नाम से, अपने रब के नाम से पढ़ें। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा फरमाया, क्रिएटेड मैन, इंसान को, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े या नुतफ़े से। एंड थाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, और आपका रब बहुत रहीम है, बाउंटीफुल रहीम होता है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये हमारा फर्स्ट रेवलेशन है, इसको एज इट इज़ याद रखें और कोशिश करें कि जब आप इसको याद करें तो इसको बार बार लिख लें। उसकी रीज़न है कि जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एट ईज़ फील करेंगे जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे। याद रखें बच्चों कि आपका वहाँ पे वर्बल टेस्ट नहीं होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो एवरीथिंग शुड बी इन रिटन फॉर्म, इसलिए आपको बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस के ऊपर ताकीद की जाती है कि लिखें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रूट आउट होंगी, और उतनी ही ज़्यादा आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। मीडिया का वो सबसे बुनियादी, सबसे अहम मकसद बताएं जो मीडिया जो है अपना रोल प्ले करते हुए करता है, किरदार अदा करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, सबसे अहम किरदार जो मीडिया अदा करता है,
इज़ दैट, वो ये है कि इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द ऑडियंस, ये अपने सामीन तक ख़बरें और मालूमात पहुँचाता है। यानी कि मीडिया जो है वो सोर्स है टू शेयर न्यूज़, टू कन्वे न्यूज़ एज वेल एज द इंफॉर्मेशन टू इट्स ऑडियंस। ऑडियंस तक वो ख़बरें भी पहुँचाता है। ऑडियंस मैंने आपको बताया था सामीन होते हैं जो टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी देख और सुन रहे हैं, उन्हें सामीन कहते हैं। तो वो वहाँ तक ख़बरें और मालूमात पहुँचाता है। ये मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे अहम किरदार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। क्या होता है जब मीडिया को उसका रोल यानी कि उसका किरदार अदा करने दिया जाता है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रखी जाती, यानी कि उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता। मीडिया के ऊपर अगर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा, उसकी कोई नुकसान है या फ़ायदे हैं, वो हमने देखने। तो आंसर कहता है व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक, जब मीडिया अपना किरदार बग़ैर किसी रोक टोक के अदा करने लगता है, देयर इज़ डेंजर, तो एक ख़तरा पैदा हो जाता है, ऑफ टसल। टसल का मतलब होता है कशमकश। कशमकश पैदा होती है, लड़ाई या झगड़ा पैदा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। जो मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान एक टसल, एक कशमकश पैदा हो सकती है, क्योंकि मीडिया जो है वो अपना रोल अनचेक प्ले कर रहा है, उसको कोई देखने वाला और रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वो जो चाहे, जिस तरह की ख़बर चाहे वो नशर कर सकता है, और उसके अंदर इस खबर के नशर करने के बाद आवाम, जो मैसेज हैं, जो नेशन है, वो उसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन बिल्ड करती है, वो एक राय कायम करती है, एक राय इस्टेब्लिश करती है। वो राय उस खबर के सुनने की बिना पर हो सकती है, और हो सकता है कि वो मुल्क के किसी आम इदारे के मुखालिफ हो, जबकि वो उसके हक़ में होनी चाहिए। तो इस तरह से मीडिया के ऊपर अगर कोई चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, कोई रोक टोक ना रखी जाए, तो मुल्क के अहम इदारों के दरमियान में एक कशमकश पैदा करवा सकता है। इसके बाद कहते हैं मीडिया कैन ब्रिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द मैसेज। और यस, ये बहुत बड़ा एक टूल है लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का, यानी कि गलत फहमी पैदा करने का। और अब इस टूल को, गलत फहमी पैदा करने वाले टूल को बहुत ही अच्छे तरीके से डेलिबरेटली यूज़ किया जाता है अपने बहुत सारे मकासद इस्तेमाल करने के लिए, जिसको आप नेगेटिव मार्केटिंग के नाम से आजकल सुनते हैं। तो ये भी एक टूल है मीडिया का, जिसके ज़रिए से नेगेटिव मार्केटिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में स्प्रेड की जाती है। तो ये वो दो काम हैं, ये वो दो ख़तरात या डेंजर्स हैं जो कि मीडिया का रोल अगर अनचेक उसको प्ले करने दिया जाए तो ये वाले ख़तरात जो है वो मुआशरे में लेके आ सकता है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। ये अगेन हमारा यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर भी बहुत आसान है। ये आप समझ लें कि आपके लिए इस क्वेश्चन अगर आता है तो 2 मार्क्स गेन करना इज़ नॉट अ बिग डील। द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। बहुत बार हमने डिस्कस किया कि व्हाट एलोक्वेंस इज़ ऑल अबाउट। आपको यकीनी तौर पे याद हो गया होगा अगर आपने प्रीवियसली सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुना और फॉलो किया। एलोक्वेंस का मतलब होता है फसाहत। ये वजाहत नहीं है, इसको वजाहत से कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, ये फसाहत है। अगर आप इसको देखें तो इसके उर्दू में कुछ इस तरह से बनते हैं, फसाहत, ये है एलोक्वेंस। और एलोक्वेंस को अगर हम आम ज़ुबान में थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि बहुत कम अल्फाज में बहुत ज़्यादा बात करना, इसको फसाहत कहते हैं। या बहुत ही रवानी और फ्लुएंसी के साथ बात करना, इसको भी फसाहत या एलोक्वेंस कहते हैं। तो अरब किसके लिए मशहूर थे? अपनी फसाहत यानी कि अपनी फ्लुएंसी और अपने बहुत कम अल्फाज में ज़्यादा बड़ा मीनिंग डिलीवर करने में, और साथ ही साथ उनके पास और क्या था? रिमार्केबल मेमोरी, एक शानदार हाफजा एक्सक्यूज़ मी, बहुत शानदार हाफजा था उनका। और इसकी मिसाल आपने देखी थी कि एक आदमी अपने खलीफा को ये कहता था कि मैं तुम्हें तमाम हरूफ तहजी के एक एक हर्फ से 100 लंबी नज़में पढ़ के सुना सकता हूँ, और उनमें मैं छोटी नज़मों का जिक्र बिल्कुल नहीं करूँगा, और मैं मेजॉरिटी या एग्जैक्टली उन शायरों की आपको नज़में सुनाऊँगा जो कि इस्लाम की तबलीग से पहले की जिन्होंने नज़में मुरतब की हुई। यानी कि उसके पास इतना डेटा उसने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में स्टोर किया हुआ था कि वो हरूफ तहजी के एक एक हर्फ, लाइक ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, तो ए से 100 लॉन्ग पोइम्स, बी से 100 लॉन्ग पोइम्स, सी से 100 लॉन्ग पोइम्स, एंड स्टिल गोज़ ऑन टू जी तक वो इस तरह सुना सकता था। और उसमें वो ये भी कहता था कि वो उन पोइट्स की सुनाएगा जो कि इस्लाम की तबलीग या इशात से पहले के पोइट्स थे। तो ये उनकी रिमार्केबल मेमोरी का वाक़या बयान किया गया था इस यूनिट में। मैंने कहा आपको थोड़ा सा रिव्यू और रिकैप दूँ ताकि आपको याद रहे, और साथ साथ उनकी एलोक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू 1 का, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। ये हमने डिस्कस भी किया था।
3 तरह की क्वालिटीज़ बयान की गई हैं, तीनों याद करके तीनों को पेपर में लिखना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें से बिल्कुल किसी सूरत कोई एक क्वालिटी मिस ना कीजिएगा। बहुत आसान क्वालिटीज़ हैं। क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, क्या औसाफ होते हैं एक पेट्रियाट के? पेट्रियाट कहते हैं एक मुहिब वतन के, जो अपनी वतन से मोहब्बत करता है। तो अ पेट्रियाट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अ पेट्रियाट इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, और एक मुहिब वतन जब ज़रूरत पड़ती है तो कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और नंबर 3, ही सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंट्री। सेफ गार्ड्स का मतलब होता है हिफाजत करना, वो हिफाजत करता है मुल्क के मुफादात की। तो ये तो 8 क्वेश्चंस थे जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में से रिव्यू 1 के हमने पेज नंबर 53 पे डिस्कस किए। इसका सेकंड पार्ट जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, और वोकैबुलरी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत तरह से मल्टीपल प्लेसेस पे या आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर गेनिंग द मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा करें, याद क्या करें, स्पेशली स्पेलिंग्स, क्योंकि स्पेलिंग्स का भी एक पोर्शन है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, उसके अलावा इनके मीनिंग्स का भी एक पोर्शन है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में। और लेटर ऑन व्हेन यू विल गो टू अटेम्प्ट योर शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू देयर ऑल्सो। अगर आपकी इसमें कोई कंसेप्चुअल या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, वर्ड के मीनिंग्स आपको आते हैं, तो आप आंसर को और ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखने के काबिल होंगे। तो जो फर्स्ट MCQ है वो है इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट अंडरलाइन किया गया है। डेलिकेट को अगर आप देखें तो इसके मीनिंग्स में हमने देखना 3-4 तरह के इसमें मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव और फ्रेजाइल। और इसमें हम इसको करेंगे फ्रेजाइल। वैसे तो इसमें डेलिकेट में सेंसिटिव भी आ सकता है और फ्रेजाइल भी आ सकता है, तो हम इसको सेंसिटिव कर लेते हैं। ये सेंसिटिव इसका मीनिंग है। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट अंडरलाइंड है, और इसको आपने इसमें से नीचे जो 4 मीनिंग्स हैं उनमें से एक मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट है फर्म एंड रेजोल्यूट, पेशेंट, रेडी टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बदतरीन के लिए तैयार रहना। तो इसमें बच्चों ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव का मतलब आपने बताना है डेडिकेट है, रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट है, ये टेक्स्ट है, तो रिवेंजफुल है यानी कि इसका बी पार्ट है। इस तरह फोर्थ MCQ कहता है एस्टोनिश मीन्स। एस्टोनिश मीन्स क्या मतलब होता है? मेक मेक होता है, मिक्स होता है, सेपरेट होता है या सरप्राइज होता है। तो इसमें सरप्राइज यानी कि हैरान कर देना। फिफ्थ MCQ, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। तमाम स्टूडेंट्स गियर्ड अप थे। गियर्ड अप का मीनिंग हमने देखते हैं, रेडी थे, साइलेंट थे, मोटिवेटेड थे, की थे। अब इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, रेडी भी हो सकते हैं और मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर यहाँ पे दिया गया है वो रेडी दिया गया, तो रेडी है यहाँ पे इसका मीनिंग। इसके बाद देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन विद देयर पोइट्री। तो हमने इसको अभी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि एलोक्वेंस क्या होता है। तो एक जो ए ऑप्शन है दैट इज़ वीक, बी ऑप्शन इज़ स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन इज़ हेल्दी और डी ऑप्शन इज़ फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी बच्चों इसका राइट करेक्ट आंसर है। इसके बाद डिवोशन मीन्स, डिवोशन का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी होता है, ग्लैमरस होता है, ईजी टू नो होता है या डिफ़िकल्ट टू नो होता है। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट और नियरेस्ट मीनिंग है वो लॉयल्टी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन। इसके बाद आपने पेज नंबर 54 पे आना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे हमने ये वाले MCQs डिस्कस करने होते हैं और अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला जो MCQ है, वेलर इज़ ए एन, ये क्या है? मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो ये सी ऑप्शन है, यस इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद ना हो तो मैं एक बार आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट noun, as its name is self-explanatory that it is related to a noun or it is a kind of a noun. Abstract noun is a kind of a noun. So what kind of noun it is? Abstract noun is a noun which we cannot experience from our native 5 senses, or we can experience this noun through our mentality, through our wisdom, through our brain or mind. अब इसको दोबारा से आम अल्फाज में देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको हम अपनी बेसिक जो 5 हिस्से हैं, जो हमारी 5 एबिलिटीज़ हैं या सेंसेस हैं, उनसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यानी कि बज़ाहिर हम ना देख सकते हैं, ना स्निफ कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना इनके बारे में बोल सकते हैं, ना इनको टच कर सकते हैं। तो हम इनको किस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हम ब्रेन या माइंड के थ्रू इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनका कोई फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल वजूद नहीं होता, बल्कि ये हमारे दिमाग में रहते हैं। मसलन हम क्वालिटी की बात करें अगर,
कि जी फ़लाँ काम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ किया जा रहा है, इस चीज़ की क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो बेसिकली हम जो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड रख रहे हैं, जो क्वालिटी की बात करें, वो हमारे माइंड में। इसी तरह अगर हम कहते हैं एक्सप्रेशंस किसी किस्म के या फीलिंग्स या इमोशंस, तो वो भी हमारे माइंड से रिलेटेड है। मसलन आई एम वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पी होना जो है इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसी फिजिकल नाउन से नहीं, बल्कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह आई एम रियली एंग्री एट यू, एंग्री होना जो हमारा एक्सप्रेशन है और हमारा इंप्रेशन या इमोशन है, वो भी डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू आवर माइंड, हम माइंड से अपने दिमाग के ज़रिए से उसको सोच सकते हैं। इसी तरह अगर हम अकल की बात करते हैं, विजडम, तो विजडम जो है उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि हम उसको भी दिमाग के ज़रिए से सोच सकते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस जो जहानत है, उसको भी आप फिज़िकली जो है वो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इंटेलिजेंस जो है उसका भी ताल्लुक आपके दिमाग से है, अकल से है। आप उसको अकल के पैरामीटर्स पर रख कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो तमाम वो वाले नाउन्स जिनको समझने के लिए आपको अपनी बेसिक आउटवर्ड 5 सेंसेस की ज़रूरत ना हो, बल्कि आपको अपनी अकल की ज़रूरत हो, अपने जहन की ज़रूरत हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास MCQ है, सम आर बॉर्न ग्रेट। सम को अंडरलाइन किया गया बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा अच्छे तरीके से केयरफुली देखें। अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एन, क्या है ये आपने बताना है। पहला है जी पोजेसिव प्रोनाउन, दूसरा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और चौथा है पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा वाला नाउन है। तो ये बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसको आप समझ लें। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट हम किसको कहते हैं? ऑब्वियसली अ थिंग विच इज़ नॉट प्रॉपरली डेफिनेट, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा श्योर यकीन के साथ नहीं कह सकते, दैट थिंग भी विल बी कॉल्ड एज इनडेफिनेट थिंग। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये इनडेफिनेट क्यों है। अगर हम देखें सम को लिख के, सम ये एक प्रोनाउन है। कुछ लोग, क्या आपको पता है इसके अंदर के कितने एग्जैक्टली लोगों की बात हो रही है? ऑब्वियसली नहीं। क्या आपको पता है कि किस किस जेंडर के लोग मौजूद हैं? मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं? नहीं पता। तो जब हमें इसमें किसी भी चीज़ के बारे में हम डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है, हमें सिर्फ बता दिया गया एक रफ एस्टिमेट, एक गेस कि सम पीपल आर ग्रेट या सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, तो हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई गई, हमें एग्जैक्ट वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं बताया गया, वो किस जेंडर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं बताया गया। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, व्हेन वी आर नॉट definite about these details, that's why this pronoun is called as indefinite pronoun. इसको हम indefinite pronoun कहेंगे। ये pronoun तो है, ये nouns को replace तो कर रहा है, लेकिन ये हमें किसी sure short, किसी definite end तक भी नहीं लेके जा रहा। That's why we call it as indefinite pronoun. So you need to remember these things in your mind, because these things can win you, can earn you 1 mark in your MCQs, and that will be very easier way to get the 1 mark in your MCQ. खैर indefinite pronoun इसका B पार्ट जो था बच्चों, B ऑप्शन वो ठीक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 3 कहता है, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। अगर मैं घर लेट पहुँचता हूँ तो मेरी वालदा हो जाती हैं। अब आपने इसको फिल करना है। एनजाइटी, एंशियस, एनजाइटीज़ और एंशियसली। तो एंशियसली तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा, एनजाइटी बिल्कुल नहीं आ रहा, एनजाइटीज़ नहीं आ रहा, तो क्या बचेगा? बी पार्ट, बी इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है। एंशियस यानी कि बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस, बेचैन हो जाती हैं मेरी वालदा जब मैं घर लेट पहुंचता हूं। इसके बाद फोर्थ जो MCQ है, साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। ये अब आपने इसमें जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम आपने फिक्स करना है। तो ये हमारे पास होगा जी, साकिब इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। ऑन, ए ऑप्शन जो है आपने करना है। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश और नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और इजी टू अटेम्प्ट है। आपने नन ऑफ दीज करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी आर्टिकल जो है वो इंग्लिश के साथ जाता हुआ ठीक नहीं लग रहा। तो नन ऑफ दीज जो डी ऑप्शन है बच्चों, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 6th MCQ, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। आज कितनी ज़्यादा रात जो है वो सर्द है, या रात कितनी सर्द है। दिस इज़ एन सेंटेंस। अब आपने सेंटेंसेस के 4 काइंड्स, 4 टाइप्स बताई गई हैं जुमलों की, उनमें से एक को आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला कौन सा है। नंबर 1 है असर्टिव, नंबर 2 है इंट्रोगेटिव, नंबर 3 है एक्सक्लेमेटरी और नंबर 4 है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव हुक्मिया होता है, नहीं है ये। इंट्रोगेटिव सवालिया होता है, नहीं है ये। असर्टिव बयानिया होता है, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में बयान कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन अगर आप देखें इसको तो ये स्टार्ट हो रहा है हाउ से।
WH वर्ड के एक ऑनरेरी वर्ड के, नॉर्मली जो क्रिटिक्स या ग्रामेरियन है वो ये कहते हैं कि H और W जो है वो एक ऑनरेरी WH फैमिली का मेंबर है, क्योंकि ये W से स्टार्ट नहीं होता, ना WH से स्टार्ट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि ये H से स्टार्ट होता है लिहाजा WH फैमिली, तो W और H इकट्ठा नहीं है, W से शुरू होने वाले और H से शुरू होने वाले, जबकि ये सिर्फ एक वर्ड है जो H से स्टार्ट होता है, इसलिए बहुत सारे ग्रामेरियंस इसको कहते हैं कि ये एक ऑनरेरी WH फैमिली का लफ्ज़ है। तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है कि ये हाउ से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन ये एक सवाल नहीं है। हाउ से स्टार्ट होने के बावजूद ये एक सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट कैसे है, क्योंकि ये एक्सक्लेम कर रहा है, किसी चीज़ को इस तरह से बयान कर रहा है जैसे उसमें इजहार पाया जाता हो, जैसे उसमें एक्सप्रेशन हो। तो चूँकि ये एक एक्सप्रेशन का इजहार, ये एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, लिहाजा बच्चों ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इजहारिया जुमला। तो आपने याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, इजहारिया। स्पेलिंग्स को याद रखने के लिए हमेशा इसको अपने तलफ़ुज़ में याद कर लिया करें। मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ एक्सक्लेमेटरी, लेकिन बोलता मैं एक्सक्लेमेटरी हूँ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अगर हम उर्दू में करें तो इसका मतलब होता है इजहारिया, यानी कि जिसमें हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये वो वाले सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी इजहारिया जुमले। तो एक्सक्लेमेटरी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इसके बाद 7th अगर हम देखें तो आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहोगे तो आई डैश यू टू राइड माई बाइक, मैं अपनी बाइक तुम्हें राइड करने के लिए देता हूँ, दूंगा, या दे चुका हूँ, या दे चुका था। अब आपने इसके अकॉर्डिंगली एक टेंस जो प्रॉपर टेंस है वो इसमें ऐड अप करना है। तो ए ऑप्शन है हैड गिवन, दे चुका था, ऑब्वियसली ठीक नहीं लग रहा। गिव, देता हूँ, इसमें एक कॉन्टीन्यूटी पाई जा रही है या एक फ्रीक्वेंसी पाई जा रही है कि बार बार एक काम की रेपिटेशन है। विल गिव, दूंगा, और डी पार्ट है गिव्स, तो गिव्स तो कभी भी नहीं आता आई के साथ हमारी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। यस, कुछ कैनेडियन जो राइटर्स हैं दे आर ट्राइंग टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, बट वो अभी आपके लेवल से काफ़ी ऊपर की बात है। फिलहाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिहाज, आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया। अभी ये याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ डज नहीं लग सकता, डू ही लगता है, लिहाजा इसी तरह गिव्स नहीं लग सकता, गिव ही लगता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जो फ्यूचर का ऑप्शन है, दैट इज सी पार्ट। आपका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। इसके बाद बच्चों 8th ऑप्शन, यू डैश बी पंक्चुअल, आपको लाजमी तौर पे पंक्चुअल होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्ट, जो हमारे ग्रामेरियंस हैं, यू मस्ट बी पंक्चुअल, और हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है यू शुड बी पंक्चुअल, तो आप शुड को लगाएंगे, ये बी पार्ट, बी ऑप्शन जो उसका वो दुरुस्त है। इसी तरह 9th MCQ कहता है द बॉय लैव्स लाउडली, लड़का जो है वो बहुत ऊंचा ऊंचा हंसता है, बहुत ऊंची आवाज़ में हंसता है। लैफ को, हंसने को अंडरलाइन किया गया है, आगे मीनिंग जो है वो द अंडरलाइन वर्ड इज एन। पूछा गया आपसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इररेगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे आपको ज़ाहिर है इसका कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है। ऑल्दो के वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सेम यूनिट, और जब हम इसकी एक्सरसाइज करें तो आई हैव गिवन द आइडिया ऑफ व्हाट transitive verb is all about and what intransitive verbs are all about, but still I think there is a need to clear this concept once again. तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि what transitive verbs are all about and what intransitive verbs are all about. Transitive, intransitive, तो verbs, तो हम सबको पता है verb क्या होता है, बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है और जिससे हम किसी भी टाइम का भी अंदाज़ा लगा लें, वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब जो है उसमें अब 2 तरह के वर्ब्स आ गए हमारे पास, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो पहले ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वाले वर्ब्स हैं बच्चों जिनको अपनी बात को बयान करने के लिए, वो वर्ब, वो वाले लफ्ज़ जो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हों कि जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। मसलन हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स which need objects
to convey their meaning properly or completely. Transitive verbs are the verbs which need objects to convey their meaning properly. यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा तो बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. मसलन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा. He makes. अब अगर मैं यहाँ पे इस जुमले को एंड करता हूँ he makes, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज़ नॉट क्लियरिंग एनी मीनिंग. ये नहीं बता पा रहा आपको कि क्या बन रहा है. आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, डेफिनेटली एक सवाल पूछेंगे कि व्हाट डज़ ही मेक, वो क्या बनाता है. ही मेक्स, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो क्या बनाता है. ये वाला वर्ब जो है, ये जो वर्ब है, ये जनरेट करना चाह रहा है एक ऑब्जेक्ट को. ये कह रहा है कि जब तक एक ऑब्जेक्ट इसके आगे प्लेस नहीं किया जाएगा तो ये उसको क्लियर नहीं कर सकता. तो ये क्या बन जाएगा, हम इसके आगे जो भी लिखते हैं, लेट्स से ही मेक्स पिक्चर्स, वो तस्वीरें बनाता है. तो अब अगर आप देखें कि जो तस्वीरें हैं ये क्या है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है. तो ये वाला जो वर्ब था, इसके आगे जब तक हमने ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया, ये अपने मीनिंग को क्लियर नहीं कर पाया. इसको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. तो वो वाले तमाम वर्ब्स जिनको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब इसी डेफिनेशन से आप इसको तो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्वियसली उसका एक काउंटर पार्ट है, उसका ऑपोजिट है. लेकिन हम इसको यहाँ से एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के लिए देख लेते हैं. सेम, intransitive verbs are the verbs which do not need objects to convey their meanings properly. ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आप एक बार देख लें. आर द वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कन्वे देयर मीनिंग प्रॉपर्ली. यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स के मोहताज नहीं है अपने मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से बयान करने के लिए. इन्हें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग्स को बयान करने के लिए. और इसी की एक मिसाल यहाँ पे लिखी गई थी, दे लैफ. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. दे लैफ. अब आप देखें ये जो वर्ब है यहाँ पे हमारे पास, लैफ इज़ द वर्ब. क्या आपको लगता है इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नहीं. तो अगर ये वर्ब किसी ऑब्जेक्ट को जनरेट किए बगैर अपने मीनिंग को बयान करे तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ, आई रैन, ही स्विम्स, तो इन दोनों वर्ब्स में भी अगर आप देखें तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें किसी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इन दोनों वर्ब्स के मीनिंग को, इन तीनों वर्ब्स के मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए. यानी कि इन तीनों के मीनिंग जो है वो हम बगैर ऑब्जेक्ट के मेंशन किए भी डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. और ये वाले वर्ब्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं है. अब हमारे यहाँ पे आंसर जो था, हमने उसके अकॉर्डिंगली एक बार इसको देखना है कि ये क्या था. सो द बॉय लैफ्स लाउडली. लाउडली में आपने कन्फ्यूज नहीं ना, लाउडली जो है इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, लाउडली इज़ एन एडवर्ब. वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी और डिग्री, ये क्या होते हैं. तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली देखना है. तो यहाँ पे जो लैब्स है उसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया. लिहाजा यहाँ पे जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऑप्शन ए. ये आपने याद रखना है. और रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में सिंपल ये फ़र्क है कि रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हैं जिनका सेकंड और थर्ड वर्ब जो है वो भी सेम वर्ड पे एंड, और मोस्टली ये ईडी पे जो है वो एंड होते हैं. और इरेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हैं जिनका सेकंड और थर्ड वर्ब सेम अल्फाज पे एंड नहीं होते. मसलन हम बात कर लेते हैं स्पिन की. स्पिन, तो स्पिन, स्पैन, स्पन. अगर हम ड्रिंक की बात करें, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. अब आप देखो कि सेकंड जो वर्ब की फॉर्म है वो ड्रैंक है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बच्चों वो ड्रंक है. तो सेकंड और थर्ड जब सेम नहीं होती तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है. लेकिन अगर हम बात करें रीच, तो होगा रीच्ड, रीच्ड. तो सेकंड और थर्ड सेम हो गए, सेम वर्ड है, सेम ईडी पे एंड हो रहे हैं, लिहाजा ये
रेगुलर वर्ब्स हैं। इसी तरह लैफ, लैफ्ड, लैफ्ड, ठीक है। तो इस तरह विश, विश्ड, विश्ड, जो अल्फाज सेम ईडी पे या सेम वर्ड्स पे एंड होते हैं, सेकंड और थर्ड वर्ब्स, उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और वो वर्ब्स जो कि सेम वर्ड पर एंड नहीं होते बल्कि इरेगुलर वर्ड्स पे एंड होते हैं, जैसे मैंने ड्रिंक की मिसाल दी है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। तो आपका जो लास्ट इसमें एमसीक्यू है, ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज लेट द विंडो बी ओपन। तो इसमें आपने याद रखना है कि इसका एक स्ट्रक्चर है। जब भी कभी आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए, द ओपन द विंडो, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये याद रखें। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के बगैर जो सेंटेंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब आ जाए जो कि ट्रांजिटिव हो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो, अभी हमने ट्रांजिटिव की बात की थी ना, ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन भी कर देता हूँ। ये सेंटेंस कहता है जी ओपन द विंडो। एक तो पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये ओपन द विंडो क्या है। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक ऑर्डर जो है वो कन्वे किया जा रहा है कि भाई खिड़की खोलो। तो ओपन द विंडो जो सेंटेंस है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे तो ये एक वर्ब से ये हमारा जुमला जो है ये स्टार्ट हो रहा है। ओपन, ओपन वर्ब है। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकें तो विंडो इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी आपको बयान किया कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो, यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें अगर आप गौर करें, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यस ऑब्जेक्ट है, वर्ब यस वर्ब भी है। ये वाला जो वर्ब है, ये कौन से वाला वर्ब है? अभी हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव। क्यों है बच्चों ये ट्रांजिटिव? क्योंकि जब भी आप किसी को कहेंगे ओपन या ही ओपन्स, तो वो पूछेगा क्या, तो आपको बताना पड़ेगा आगे ऑब्जेक्ट। ओपन्स द विंडो, ही ओपन्स द विंडो ऑल द टाइम, और ओपन द विंडो। तो आप अगर खाली ओपन करके ओपन बोल के चुप हो जाएंगे तो आपकी बात कन्वे नहीं होगी। आपको मीनिंग कन्वे करने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा। लिहाजा ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये याद रखें कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, ऐसा वर्ब आ जाए जिसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको 100% पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा सब्जेक्ट जुमले में सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो भी आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे ऑब्जेक्ट ही ना हो तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था, दे लैफ, दे लैफ। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑल्दो कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चों, वो ज़रा याद कर लें। सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने लेट पुट करना होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में जिनमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, और ये इंपैरेटिव सेंटेंस, लेट। इसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जो भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है आपने उसको प्लेस करना है। देन आपने इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो बी है ये आपने पुट करना है। हेल्पिंग वर्ब। और ये याद रखें बच्चों के पैसिव वॉइस में हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पार्टिसिपल जिसके कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारे पास एक इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पैसिव वॉइस में। लेट, अब मैंने ऑब्जेक्ट पुट करना है, द विंडो। फॉर्मूला का बी, हेल्पिंग वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ओपेंड। ओपन था तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपेंड। लेट द विंडो बी ओपन। तो अगर आप ये देखो तो ये लेट यहाँ से, द विंडो ये हमारा ऑब्जेक्ट, बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, ओपन जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से हम एक ऐसे सेंटेंस को बच्चों जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था, इसको हम इस तरह से
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें आपने याद रखना है। ओपन द विंडो ये एक्टिव वॉइस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको हमने एनालाइज कर लिया कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो उससे पहले मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। याद रखें ये स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लिए। वैसे आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है, फिर भी आपने इसको नोट खुद से करना है ताकि आप इसको याद रख सकें। एक बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। स्ट्रक्चर लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हमने इसको इसके रियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया? लेट द विंडो बी ओपन। तो अगर हम इस ऑप्शन पे आ जाएं तो बच्चों सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस जुमले की जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेट द विंडो बी ओपन। ये इसका जुमला का बनता है। यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का रिव्यू था ये कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किए और जो आज हमने स्टडी किए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। मसलन हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस कर लिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया, उसके अलावा हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कर लिया, और साथ ही साथ हमने जो पैसिव वॉइस था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्कस कर लिया। तो बच्चों इस लेक्चर को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हूँगा आपके लिए बहुत सारी और मालूमात लेके। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।